So slide is visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, great. So today, as I have told, this is going to be the introductory class on the modern taxonomic tool, and if the time permits, we are going to discuss about the karyotaxonomy also. Okay, so let's start with the introduction to modern taxonomic tool. So as I have told, you already studied a very significant part of your syllabus, okay, where you have studied so many things which is related to the principle classification of taxonomy, then so many methods, okay, that is used for the classical taxonomy. So now the question arises, when you have already studied, okay, a tool or a methods or a process, okay, or a science that deals with the taxonomy, okay, means classically you can identify the species if you can record the morphological characters or the meristic counts in the fish, you can identify the species, is it? If you have seen some of the characters, like if I have given you one specimen that belongs to the species rohu, suppose Labiorota, so with the help of a classical taxonomy you can identify the species, is it? Yes or no? Yes, ma'am. You Yes, will ma'am. be, you will be, if you come in a practical class and one specimen is given, and suppose that specimen belongs to the species Labiorota, okay, and now you have the keys or the diagnostic character. Diagnostic character means the character that is unique to that particular species, or character that is used to identification of a particular species. So if you have if you have the keys or the diagnostic characters, you can identify the species by the classical taxonomy, is it? Yes or no? You can identify. So Yes, ma'am. if you have Yes, ma'am. already a developed method, if you already have a science that is years old, okay, when we talk about the taxonomy at the time of Carolus Linnaeus, और उसके पहले से भी taxonomy जो है classification, this science established, बहुत पुरानी science है, बहुत advances इसमें हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया है. So एक already एक system exist करता है, then why there is a need for a modern taxonomic tool? जब एक system already है, एक methods हैं, एक तरीके हैं चीज़ों को करने के लिए, then why there is a requirement of a modern taxonomic tool? So here are the 4 points that is on this slide. It actually defines ki why the molecular tools is required. The very first things, the earth is populated by millions of species. If I'm talking about only the animal species, their number is 20 billion billion. Okay, 20 billion billion. You just forget about the animal species. I'm just coming to the number of species which is reported till date in terms of fishes. Okay, if we talk about, if we take the reference of the Nelson 2006, there is 32,500 fish species, reported fish species. इट डजंट मीन कि अर्थ पे इतनी ही स्पीसीज है, ये वो फिगर है 32,500 इज अ फिगर दैट इज रिपोर्टेड. देयर आर स्टिल बहुत सारी स्पीसीज हैं विच आर अनरिपोर्टेड. ओके, so just forget about the total number of organism, plant, animal, or just forget about the animals which are 20 billion billion in number. Just stick on the fishes only. Okay, there is 32,500 reported species, and their number is increasing day by day. This figure is of 2006, so now this figure already crossed the 33,000 species. Okay, so just see itni sare species hai. When earth have so many species, इतने सारे organisms हैं, तो इतने सारे organisms को अगर आप classical taxonomy के साथ discriminate करते हैं या identify करते हैं, then it will going to be Herculean task. Okay, possible नहीं है आप सिर्फ classical taxonomy से इतनी सारी चीज़ों को कर सकें. उसके बाद their discrimination, suppose okay, so many papers, so many studies, या अभी जैसे आप बोलते हैं ना ये रोहू है, कतला है, मृगल है, those species has been identified by the classical taxonomic tools only. Okay, so किया है, कर रहे हैं, लेकिन उसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट करना स्पीसीज को, इट इज नॉट सो इजी. क्यों?
क्यों? क्योंकि साइज अगर बहुत स्मॉलर साइज है, या जेंडर का डिफरेंस है, मेल फीमेल है, बहुत, या फिर फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, इसकी वजह से आप जो है, आप जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इतना इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को भी कीज दे दी जाए और आपको बोला, जनरली की का फंक्शन यही होता है कि अगर आप एक लेमैन को भी की दे दें और उस की से वो जो है उस मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकता है, बट ये जितना सिंपल साउंड करता है एक्चुअली इतना सिंपल होता नहीं है। सपोज मैं आपको किसी भी स्पीसीज की, फिश स्पीसीज की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको 10 डायग्नोस्टिक कीज दिए और मैंने बोला कि आपको इंटरऑकुलर स्पेस का हेड लेंथ के साथ जो रेशियो है, अगर पर्टिकुलर 1 से 1.5 के बीच में आता है, सो ये स्पीसीज ए है। सो वो की फॉलो करने से पहले यू नीड टू नो व्हाट इज इंटरऑकुलर स्पेस। हेड लेंथ आप कहाँ से कैसे मेजर करेंगे? इट मीन्स यू नीड एक्सपर्टाइज। Okay, you need expertise for discrimination, and you need a very good level, a very high level of expertise. Okay, then I'm so ये काम कौन करता है? There are the taxonomists. There are several scientists, taxonomists who can critically identify the species. लेकिन अभी तक जितने भी मतलब taxonomist हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, whether they are ichthyologist हैं या दूसरे एनिमल्स पे, प्लांट स्पीसीज पे या माइक्रोब्स पे काम कर रहे हैं, they have identified only 0.01% of this species. अगर मैं estimated species की बात करूं, टोटल जो 10 से 15 मिलियन species हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.01% आइडेंटिफाई की गई हैं बाय द टेक्सोनॉमिस्ट। व्हाई? बिकॉज they are the experts. And if I'm talking about the taxonomy, suppose I'm talking about a taxonomist which is identifying a particular group. Okay, अगर मैं fishes की बात करूँ, fish taxonomist की बात करूँ, तो ऐसा एक भी taxonomist नहीं है जिसके पास आप कोई भी fish लेके जाइए and he will, वो देखेगा और आपको बता देगा। नहीं, उसमें भी आपके माइक्रो स्पेशलाइजेशन होते हैं। देयर आर सम ग्रुप ऑफ टेक्सोनमिस्ट जो कि आपके फिन फिशेस में स्पेशलाइज्ड हैं या सेल फिशेस में स्पेशलाइज्ड हैं। फिर फिन फिशेस में कुछ ऐसे टेक्सोनमिस्ट हैं जिनका सिर्फ कैट फिशेस पे स्पेशलाइजेशन है, कुछ का सिर्फ कार्प्स पे है, कुछ का आपका परचेस पे है। फिर उसमें भी और भी माइक्रो स्पेशलाइजेशन है, उसमें कुछ फैमिली लेवल पे स्पेशलाइज्ड है, कुछ जीनस लेवल पे स्पेशलाइज्ड है। तो बेसिकली एक तो इनका नंबर बहुत कम है, जो स्पेशलाइज्ड टेक्सोनमिस्ट हैं उनका नंबर बहुत कम है। उसके बाद अगर वो सारे लोग काम भी करते हैं, तो जो इतनी सारी जो पॉपुलेशन है या इतनी सारी जो स्पीसीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बाय द टेक्सोनमीज और बाय द एक्सपर्ट्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, देन सो इसलिए आप यू दैट इज वाई जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है वो एक स्टेब्लिश साइंस है, लेकिन उसकी वजह से आप जो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म की इस प्लैनेट पे, आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। सेकेंड, अगर मैं बात करूं जो भी क्लासिकल टेक्सोनॉमिक टूल्स हैं, दे आर टाइम टेकिंग। आपको उसमें से जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनको पहले आपको मेजर करना है, उसको डेटा रिकॉर्ड करना है, फिर उसकी एनालिसिस है और बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत एक्सपर्टाइज हैं, स्टेप्स हैं, दे आर टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉलिकुलर टूल्स पर शिफ्ट हो जाते हैं, दे आर फास्ट। दे आर फास्ट मीन्स कम टाइम में आप ज़्यादा स्पीसीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिलायबल। अगर मैं रिलायबल की बात करूं, तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है थ्रू मॉडर्न टूल, वो क्योंकि आप वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ों के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि एक हर स्पीसीज के लिए यूनिक होती है। दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल आल्सो। सो दैट आर सम ऑफ द रीजन why there is a requirement of the modern tool, but it doesn't mean the modern tool can replace the classical tool, या classical taxonomy का replacement modern tools कभी नहीं हो सकते। it can supplement the classical taxonomy। Okay, why? Because it has so many advantage over the classical taxonomy, so if both can be complement each other, it can be uh, means better for the taxonomic or identification studies. Okay, now
some of the limitations of the classical taxonomy and when I'm talking about the morphological identification. अगर मैं taxonomy का बात करूं तो उसमें क्या होता है कि एक जो identification है किसी भी particular species का वो one of the important part in terms of taxonomic studies. Okay, so अगर आप तो फिर मैं कह रही हूँ कि आपको modern tools की requirements क्यों है, because थोड़ी limitations हैं आपकी classical taxonomy में. So the very first limitation is what? The presence of phenotypic plasticity and genetic variability. Okay, what happened, we use some characters, some morphological features. Okay, we use some morphological features of phenotype characters for the recognition. Okay, but suppose a species have a phenotypic plasticity. प्लास्टिक क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है. अगर मैं फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी की बात करूं तो उसका फिनोटाइप हो सकता है हैबिटेट के साथ थोड़ा चेंज हो सकता है एज के साथ थोड़ा चेंज हो. ठीक है, तो अगर हैबिटेट के साथ किसी भी स्पीसीज का फिनोटाइप चेंज होता है तो वो स्पीसीज तो नहीं बदली ना, खाली उसका अपीयरेंस चेंज हो गई है. अगर अपीयरेंस चेंज हो गई है और अगर हम क्लासिकल टेक्सोनोमिक टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, क्लासिकल टेक्सोनोमिक टूल्स किसके बेस्ड पर है? अपीयरेंस के बेस पर. तो अगर एक ही स्पीसीज दो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग दिख रही है तो हम उसको मिस आइडेंटिफाई कर देंगे एज अ टू डिफरेंट स्पीसीज. या हो सकता है कि दो स्पीसीज जो कि जिनकी मॉर्फिनोटिपिक अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट थी, लेकिन क्योंकि शायद वो एक जैसे हैबिटेट में है तो बहुत सारे एक जैसे हैबिटेट में रहने के लिए, फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत सारे कॉमन फीचर्स आपको चाहिए होते हैं. तो हो सकता है कि वहां पर वो उसको डेवलप कर ले. जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है लेकिन फिनोटाइप एक जैसा हो गया तो वो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे भी क्लासिकल टेक्सोनॉमी मिसलीडिंग हो सकती है. क्यों? क्योंकि हमने दो अलग अलग स्पीसीज को एक जैसा आइडेंटिफाई कर लिया. सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द क्लासिकल टेक्सोनॉमी. दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि एक ही स्पीसीज के अंदर मतलब मॉर्फोलॉजिकली दो इंडिविजुअल एक जैसे दिखते हैं, बट व्हेन यू गो फॉर द जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस या जेनेटिक कॉम्पोजिशन जब आप देखते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर फिनोटिपिक कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन जेनेटिकली दे आर डिफरेंट. जेनेटिकली अगर डिफरेंट है इट मीन्स दे आर डिफरेंट स्पीसीज. तो इस तरह की जो स्पीसीज होती हैं उनको हम क्रिप्टिक स्पीसीज या हिडन स्पीसीज बोलते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन. ओके, हियर यू कैन सी दैट. Wait. So just see, this is species A. This fish is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now there is another fish B. Okay, so simply by looking at these two figures, what you are able to get, क्या लग रहा है? अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखते हैं और अगर आप इसे देखें तो बेसिकली दे लुक्ड एज, वो दोनों आपको एक सेम स्पीसीज लग रहे हैं. सेम शेप है, सेम कलर है, फिन पे जो पैटर्न्स है पिगमेंट्स का वो भी सेम है, स्केल्स का जो अरेंजमेंट्स है वो भी सेम है. ओके, सो अगर आप इसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी के थ्रू आइडेंटिफाई करें सो इट विल there will be a difficulty to identify these two species because these two appears almost same, एकदम एक जैसी दिखते हैं. ठीक है, but actually these two figures or these two pictures belongs to two different species of Pontius. They both are the species of genus Pontius. By classical taxonomy, it is very difficult to identify these two species as a two different species, species A of the Pontius and the species B of the Pontius. But when we go for the molecular taxonomic tool or genetic identification tool, then you will be easily able to identify कि yes, specimen 1 is belong to the species A and specimen 2 belongs to the species B. Why? Because morphologically they are similar, but or they lack the phenotypic differences. They doesn't have any phenotypic difference, but their genetic composition is different. That's why they are two different species. So whenever we take the classical taxonomic tools, yes, there will be the limitation. Why? Because of the phenotypic plasticity and because of the cryptic taxa, the presence of the cryptic taxa. And when we talk about the fishes, the presence of the cryptic taxa or the hidden species is very common phenomena. Okay, so that's why the classical taxonomy have some limitations when we talk about the identification which is based on
morphological identification. Okay, so up to this it is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so now the third limitation. Okay, whenever we identify the fish morphologically, okay, what we used to find, we simply record the morphological or phenotypic or the appearance characters. Okay, but what happened, अब अगर कोई particular morphological character किसी particular life stage में ही दिखता है या appear होता है या किसी particular gender में ही अपीयर होता है, सपोज कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, सपोज कोई फिश है, उसके बॉडी पे कुछ स्पॉट्स हैं, ब्लैक कलर के 3 या 4 स्पॉट्स हैं, वो स्पॉट्स उसमें तभी नजर आते हैं जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर है, जब वो अडल्ट है या मैच्योर है, रिप्रोड्यूस कर सकती, जब वो जुवेनाइल है उसमें वो पैटर्न नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक मेरिस्टिक काउंट है। व्हेन यू सी आप जो बैंड्स पैटर्न होते हैं बॉडी पे, दैट इज कंसीडर्ड एज अ मेरिस्टिक काउंट, वो आपके आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो आप सेम ही स्पीसीज के अगर आप 2 इंडिविजुअल नेचुरल वाटर बॉडी से कलेक्ट कर रहे हो, एक जो है उस पे बैंड पैटर्न नहीं है क्योंकि वो जुवेनाइल है, यंग है, और दूसरा आपने कलेक्ट किया उस पे बैंड पैटर्न है क्योंकि वो मैच्योर है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर है। तो अगर आप मॉर्फोलॉजिकल की फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यू विल बी मिस आइडेंटिफाई अ सेम स्पीसीज इनटू 2 डिफरेंट स्पीसीज, ऐसा कर सकते हैं। और या फिर कोई पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर मेल में है, फीमेल में नहीं है, ठीक है, या फीमेल में है और मेल में नहीं है, तो क्या होगा, आपको लगेगा ओ दिस इज एक्स, ये तो एक अलग कैरेक्टर है, तो अलग कैरेक्टर है तो आप उसको मिस आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 2 अलग इंडिविजुअल। मैं एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही रिसेंट पेपर है, शायद 2018 का पेपर है ये, उसमें ये एक स्पीसीज है जिनेंटेंडोन कैंसिला। तो जो जिनेंटेंडोन कैंसिला होता है उसमें जब जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें मेल में देखो यहाँ पर एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर है, this hump like structure is visible to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So this is a male zinentendon cancella which have a hump, okay, आपके dorsal side पर एक hump है, और वहीं same age की जो फीमेल जिनेंटेंडोन कैंसिला है उसके ऊपर ये हम्प नहीं है। सो अगर इस हम को हम कोई मॉर्फोलॉजिकल की तरह समझते हैं, या इसको अगर हम एक कैरेक्टर समझते हैं, की नहीं समझ रहे, कैरेक्टर समझ रहे हैं, सो वी मे मिस आइडेंटिफाई दीज 2 इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज or the male of the female of same species as a 2 different species. Okay, that is also one of the limitation of the classical taxonomy. उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि यूज ऑफ क्लासिकल, आप जो टेक्सोनॉमिक कीज हैं जो आपको यूज करके फिश आइडेंटिफाई करनी है, वो कीज आप कब यूज करेंगे, व्हेन यू हैव अ वेरी थॉरो नॉलेज ऑफ ऑल द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज और फैमिली और जीनस. So you basically need a very high level of expertise. Okay, so having the high level of expertise is not so easy, and so many experts in particular group or is very few in number. Okay, so these are some of the limitations why there is a requirement of the modern taxonomic tool. Okay, so now there are some of the modern taxonomic tools that we are going to study. There are several, okay, there are several modern taxonomic tools that can be used for identification of the fishes, or that can be used for the taxonomy. Okay, but in your syllabus there are these 4 tools which are the part of the syllabus, like karyotaxonomy, DNA barcoding, protein markers, and DNA markers. Okay, so in your syllabus we are going to discuss these 4 important modern taxonomic tools: the karyotaxonomy, DNA barcoding, DNA markers, and protein markers. Okay, so today we are discuss about the karyotaxonomy. Okay, so any one of you have heard this term karyotaxonomy before? Yes, ma'am. Yes, anyone can tell me what is karyotaxonomy? कोई बताएगा? Taxonomy that deals with the structure of nucleus.
The study that deals with the structure of nucleus. Chromosomes. मैम Number of क्रोमोजोम का chromosomes. नंबर हो, उसका बिहेवियर हो, अरेंजमेंट हो, इसके आधार पे स्पीसीज को डिफरेंशिएट करना। ओके, कैरियोटाइप के आधार पर स्पीसीज को डिफरेंशिएट करना। ओके, यू आर वेरी नियर टू द definition. When we talk about the karyotaxonomy, basically this is made up of two words. Okay, karyo and taxonomy. Karyo, the word is taken from the karyotyping, and taxonomy means method or the science that deals with the classification and identification. Okay, so when we talk about the karyotaxonomy, this is a tool where we identify the species or classify the species based on the karyotype of a particular species. Now, what is karyotype? What is karyotype? कोई बताएगा? Study of chromosome based on its size, shape, and positions. Okay, to identify valid character. Okay, so when we talk about the karyotype, this is karyotype is basically the pictorial display of the chromosome complement of any individual. ओके मैं अगर किसी भी इंडिविजुअल की बात करूं, किसी भी एनिमल प्लांट, किसी भी स्पीसीज की बात करूं, पर्टिकुलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स, सो बेसिकली क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्स है उसका जो पिक्टोरल डिस्प्ले है दैट इज अ कैरियोटाइप. Okay, so the pictorial display of the chromosome complement of particular species is a karyotype. So before talking about the karyotype, we should talk a few things about the chromosomes. Okay, what is chromosomes and how what are the different type of chromosomes, how their nomenclature is done on the basis of okay, that we will see first, then we'll come to the karyotype. So there was a Swiss botanist Nageli who actually first described a thread-like structure in a plant cell. Okay, so that time he used the term transitionary cytoblast for the chromosomes. Okay, because he was the person who first located the thread-like structure in the nucleus of a eukaryotic plant. Then in the 1888 there is a scientist Waldeyer who coined the term chromosomes. Chromosomes means, this is the word which is made up of two words, the chromus and the soma. Chromus means it has a Greek origin. The chromosome word has a Greek origin. Okay, chromus means color and soma means body. So basically he used the term chromosome for thread-like structure because it gives the color after staining with a particular dye. Okay, so they are basically the colorful body inside the nucleus. That's why the term chromosomes was given by the Waldeyer. So here we'll see chromosomes. So now in more detail. So when we talk about the genetic material in an organism, that is what? Either DNA or RNA. Okay, what is genetic material? Genetic material is a material inside the cell that carries the information which inherited from one generation to the another. Okay, so when we talk about the genetic material, which is DNA in most of in eukaryotes, there is RNA also in some of the viruses. Okay, so when we talk about the DNA, suppose if I'm talking about the DNA of a single cell of a eukaryote, suppose human cell, अगर मैं ह्यूमन सेल के सिंगल सेल से अगर डीएनए आइसोलेट करती हूँ और उन सारे स्ट्रैंड को, डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना, सिंगल्स, अगर उन सारे डबल स्ट्रैंड डीएनए को एक के बाद एक के बाद एक के बाद नॉट कर देती हूँ, ठीक है, तो उसकी एक के बाद एक के बाद नॉट कर देती हूँ तो उसकी लेंथ अराउंड 2 मीटर होगी. और अगर मैं एक इंडिविजुअल के सेल, सारे सेल्स के डीएनए को, उस इंडिविजुअल की बॉडी में जितनी सेल है उन सारे सेल्स के डीएनए को एक के साथ टाई कर देती हूँ, एक लंबी सी स्ट्रिंग बना देती हूँ नॉट करके, तो उसकी लेंथ इतनी होगी कि आप पूरी अर्थ को एक बार लपेट सकते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? इतना सारा जेनेटिक मटेरियल, इतना लंबा डीएनए जो है बॉडी के अंदर रहता है. सो इतना लंबा डीएनए, इतना सारा जो डीएनए है, दैट एक्चुअली अकोमोडेट्स इनसाइड द टाइनी न्यूक्लियस ऑफ द सेल.
हाउ, बिकॉज ये जो आपका डीएनए मटेरियल होता है ये टाइटली पैक्ड होता है. टाइटली पैक्ड होता है मतलब इसकी पैकेजिंग होती है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शरी पैकेजिंग, क्वाटरनरी पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग ऑफ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. ओके, तो ये जो बहुत टाइटली पैकिंग होती है इसकी वजह से ये क्रोमोसोम जैसी कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं. तो अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं तो डीएनए क्या होता है, एक प्रोटीन होती है कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ जो है वो कॉइल्ड होता है. फिर वो हिस्टोन प्रोटीन आपस में कॉइल्ड करती हैं, फिर उसकी फर्दर कॉइलिंग होती है. ऐसे करके मल्टीपल जो आपकी जो पैकेजिंग है, मल्टीपल लेवल ऑफ पैकेजिंग के बाद आपका एक क्रोमोसोम दिखता है. ओके, so when we talk about the chromosome, that is basically a DNA material or the genetic material that is tightly coiled many times around a protein, okay, or that is tightly packed by several level of packaging. Okay, so whenever we talk about, अगर आपको किसी भी सेल में क्रोमोसोम विजुअलाइज करना है, then you will be able to visualize the chromosome during the cell division phase only. जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो बेसिकली ये जो क्रोमेटिन है वो एकदम स्पेगेटी जैसे नूडल्स होते हैं ना, ऐसे अगर आप बड़े बड़े नूडल्स बोल में रख के खाएं और उनको देखें, सो इनका जो लुक है दे आर बेसिकली स्पेगेटी इनसाइड द बोल. ओके, मतलब आपका न्यूक्लियस वो है, एक बोल है और उसमें आपका डीएनए स्पेगेटीज नूडल्स की तरह फैला हुआ है. लेकिन जब जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम में इनकी पैकेजिंग और भी टाइट हो जाती है एंड दे लुक लाइक अ स्ट्रक्चर. ओके, कुछ वाई शेप या एक्स शेप या वी शेप स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं. सो दैट इज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ओनली. ओके, और सेल डिवीजन में भी जो आपका मेटाफेज होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी सबसे डिस्टिंक्ट होती है. सो व्हेनेवर जब कैरियोटाइप बनाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो जो क्रोमोसोम हार्वेस्ट किए जाते हैं या जो क्रोमोसोम्स निकाले जाते हैं मेटाफेज बनाने के लिए, सॉरी कैरियोटाइप बनाने के लिए, that are from the metaphase only. Okay, so here you can see सेंट्रोमेयर. ओके, जैसे कि मैंने बोला क्रोमोसोम्स क्या है, टाइटली पैक्ड जेनेटिक मटेरियल है एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. अब वो डिफरेंट टाइप्स कैसे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर. व्हाट इज सेंट्रोमेयर? सेंट्रोमेयर एक रीजन होता है किसी भी क्रोमोसोम्स पे जहां से वो स्पिंडल फाइबर, अगर आपने सेल डिवीजन, आपको याद होगा अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो बेसिकली क्या होता है जब क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पे आकर अरेंज होते हैं, दैट इज अ मेटाफेज. ओके, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आके आपके इक्वेटर पे अरेंज होते हैं और वहां से उसके बाद दे यूज टू मूव टुवर्ड्स द टेलो, मींस टुवर्ड्स द पोल्स. होता है ना ऐसा, ये सुनो, यस Yes, मैम. ma'am. यू रिमेम्बर ना? तो वो टुवर्ड्स द पोल माइग्रेट करते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, एक स्पिंडल जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना, कुछ फाइबर्स होते हैं जो आके जुड़ते हैं. तो वो जो स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो कि आपका पार्ट होते हैं साइटोस्केलेटन का, वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम में रैंडमली कहीं भी आके नहीं अटैच हो जाते हैं. दे बेसिकली अटैच एट वन पोजीशन एंड दैट पोजीशन इज नोन एज अ सेंट्रोमियर. ओके, सेंट्रोमियर पे आपका स्पिंडल फाइबर जुड़ता है और फिर दोनों तरफ से जब स्पिंडल फाइबर जब पुश करते हैं सेंट्रियोल्स, तब जाके वो अलग अलग पोल्स पर मूव करते हैं क्रोमोसोम. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर आपके क्रोमोसोम्स का क्लासिफिकेशन होता है, लाइक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स. ओके, so just see, when we talk about the metacentric chromosome, the position of the centromere will be in the middle. Okay, when we talk about the submetacentric, the position of the centromere off the middle. Okay, means बीच से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे. When we talk about the subtelocentric or acrocentric chromosomes, they are very near to the terminal. It's not at the terminal, near to the terminal. So that's why subtelocentric, subterminal position है इनकी. And when we talk about the telocentric or acentric chromosomes, the position of the centromere is at the terminal. Okay, so on the basis of the centromere positions, the chromosomes are classified into 4. The metacentric, where the position of the centromere is middle. Submetacentric, where the position of the centromere is off the middle. Then subtelocentric, where the position of the centromere is subterminal. And then telocentric, where the position of the centromere is terminal. Okay, so it is clear to everyone?
Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. So now another term, arm ratio. Okay. So when we visualize the chromosomes into the सेल डिवीजन और मेटाफेज व्हाट वी सी यू यूज टू सी ऐसे एक स्टैंडर्ड एक एक्स जैसा शेप दिखती है बेसिकली दो आर्म्स होती हैं एक पी आर्म होती है एक क्यू आर्म होती है सो सेंट्रोमियर के ऊपर और नीचे की जो आर्म्स है दैट विल बी डिफाइंड एज अ पी और क्यू आर्म व्हेनेवर वी ड्रॉ द स्टैंडर्ड chromosome picture we always draw the p arm up and the q arm below okay और p और q का जो टर्म है p means the short arm and the q means the long arm. Here also you see when we talk about the metacentric chromosome because the position of the centromere is in the middle the length of the P and Q will be almost same okay. So when we take the arm ratio which is the long arm divided by the short arm Q is divided by P okay. So when your arm ratio is between 1 to 1.17 that your chromosome is considered as metacentric and when it is 1.2 to 2.8 it is considered as submetacentric. This is P arm, this is longer arm is a Q arm. In subtelocentric or acrocentric the arm ratio will be more than 2.3 to 5.7 and in telocentric you won't get the arm ratio because the position of the centromere is terminal and it doesn't have two arms okay यानी एक ही आर्म है दैट्स व्हाई यू वोंट गेट एनी आर्म रेशियो सो यू विल गेट द आर्म रेशियो इन मेटासेंट्रिक सबमेटासेंट्रिक एंड subtelocentric or acrocentric chromosomes okay. So this is the arm ratio. Now the centromeric index okay. Centromeric index is basically an index which depicted in terms of percentage which is expressed in the term of percentage and it has a formula the length of the short arm okay the short arm length means P is divided by the short arm length plus long arm length okay. So CI means P divided by P plus Q okay and when you need to express it in the percentage then it needs to be multiplied by 100 otherwise not. अगर आप इसको percentage में नहीं point values में represent करना चाह रहे हैं express करना चाह रहे हैं then the formula of the centromeric index will be the P short arm divided by P plus Q okay. And when you want to express it in the percentage the entire value you need to multiply with the 100. So when we talk about this you just see for metacentric the centromeric index will be 0.46 to 0.5 why because the position of the centromere is in the center. You simply say अगर P की वैल्यू अगर ये 1 है सपोज ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 0.5 सेंटीमीटर का हुआ ये 0.5 सेंटीमीटर का हुआ तो 0.5 is divided by 1 so what will be the value 0.5 is it. So that's why when we calculate this so just simply looking at the फिगर ऑफ द सेंट्रोमेरिक इंडेक्स आपके पास क्रोमोसोम्स की पिक्चर नहीं है लेकिन अगर आपके पास सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमेरिक इंडेक्स वैल्यू है सो बाय सिंपली लुकिंग एट द सेंट्रोमेरिक इंडेक्स वैल्यू और सिंपली लुकिंग एट द आर्म रेशियो you can tell that ki, yes this particular chromosome is a metacentric chromosome or submetacentric chromosome or subtelocentric chromosome or telocentric chromosomes okay. So simply by having the arm ratio or centromeric index you can you can define that ki, yes this value belongs to which type of chromosome. So now come to the karyotype okay. So what is karyotype? It is basically the chromosome complement of a cell or a whole organism. So when we talk in detail or in particular it is basically the pictorial display of the chromosome complement of a cell which shows the total number of chromosome inside the cell, the size of the chromosomes and the shape of the chromosomes which are seen during the metaphase of mitosis okay. Because this kind of X-shaped structure or V-shaped structure or Y-shaped structure you will only be able to see during the metaphase of the mitosis or the metaphase of the cell division okay. So
So karyotype is what? Basically the pictorial display of a chromosome complement of a cell, which shows the number of the chromosomes, the size of the chromosomes, the shape of the chromosomes. Okay. So this is the karyotype. ये बता सकते हैं ये किस species का karyotype है? Anyone? Just look into the karyotype and tell. I'm audible? Yes, ma'am. ह्यूमन का है मैम? Human. Human में कितने male का। chromosomes होते हैं? There is 23 pairs of chromosomes, 22 pairs autosomes, and 1 pair as a sex chromosomes. Okay, so this is the karyotype of a human. So now, what is karyotyping? ये तो हो गया karyotype. अब karyotyping क्या होती है? So basically, in which what you used to do, it is basically an organized profile of an individual chromosomes. Okay, then it is a pictorial display of the metaphase chromosome from mitotic cell. It is a process where we find the chromosomal characteristic of a cell, of an organism, of an individual. In karyotyping, what we used to do, chromosomes are stained. Okay, why staining is required? Staining is required for clear visualization of the structure. क्योंकि अगर आपको जिससे आपको कोई सोल्यूशन है उसमें आपको कुछ ट्रांसपेरेंट चीजें डाल दी जाए और उसी में साथ में कुछ कलर्ड चीजें भी डाल दी जाए, तो व्हेन यू नीड टू विजुअली आपको जिसको सेपरेट करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो जो कलर्ड ऑब्जेक्ट है उनको सेपरेट करना इजी होगा कि नहीं होगा? Is it? So that's why whenever we go for the karyotyping, the staining of the chromosomes is required. The staining of the chromosome is required just for clear visualization, for arrangement. और अगर हम diploid cell की बात करें तो जितने भी chromosomes होते हैं, they are present in the pair. यानी कि एक सेल में एक जैसे 2 chromosomes होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम्स. इज इट? क्यों होते हैं एक जैसे 2 क्रोमोसोम? जब उस इंडिविजुअल में गैमीट फॉर्मेशन होगा तो वो जो एक गैमीट जो होते हैं उसमें सिंगल होता है, यानी एक ही क्रोमोसोम होता है, उसका होमोलोगस जो होता है वो दूसरी सेल में होगा. तो जब मेटिंग होती है, जब एनिमल्स के बीच में मेटिंग होती है, तो एक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कहाँ से आता है? आपके मैटरनल होता है और एक होता है पैटर्नल होता है. ठीक है, और दोनों जब फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं, देन यू विल गेट द 2 क्रोमोसोम्स ऑफ अ सेम टाइप. दे आर द होमोलोगस पेयर्स. ओके, सो अगर आपको पेयरिंग भी करनी है, अब जैसे कि पेयरिंग करनी है मतलब क्या? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करके उसको karyotype में अरेंज करना है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी उसकी स्टेनिंग रिक्वायर्ड है. स्टेनिंग से क्या होता है? सिर्फ कलर या शेप ही पता नहीं चलती. अगर आप बहुत ध्यान से देखें आप कैरियोटाइप्स को, तो उसमें बैंड से दिखते हैं. कहीं पे स्टेनिंग डार्क होती है, कहीं पर लाइट होती है. वो जो बैंड पैटर्न दिखता है वो क्यों दिखता है? कहीं कहीं पर क्रोमोसोम में हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होता है, कहीं कहीं पर यूक्रोमेटिक रीजन होता है. हेट्रोक्रोमेटिक रीजन डार्कली स्टेन करता है, यूक्रोमेटिक रीजन लाइट स्टेन करता है. तो ये जो अलग अलग इंटरवल्स पे जो यूक्रोमेटिक और हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स होते हैं, उसकी वजह से अलग पैटर्न्स डेवलप हो जाता है क्रोमोसोम की स्टेनिंग का. तो उस पैटर्न से आप एग्जैक्ट होमोलोगस जो है वो फाइंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द कैरियोटाइपिंग. दैट इज व्हाई कैरियोटाइपिंग में स्टेनिंग रिक्वायर्ड है. जब तक आप स्टेन नहीं करेंगे, क्रोमोसोम की स्टेनिंग नहीं करेंगे, आप कैरियोटाइपिंग नहीं कर सकते. ओके, then last में karyotyping क्या करते हैं? In karyotyping they are arranged as the chromosomes. First it will be numbered, कितने chromosomes हैं एक diploid cell में, फिर उसको अरेंज करते हैं कैसे? द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे, फिर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे, फिर सब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे और लास्ट में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे. अब सपोज एक सेल के अंदर 10 मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं, तो उनको कैसे अरेंज करेंगे? आपको पहले 10 अरेंज करने, लेकिन उन 10 का अरेंजमेंट क्या होगा? उसमें
वी विल अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, मतलब जो लार्जेस्ट मेटाफेज क्रोमोसोम होगा वो सबसे पहले अरेंज होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट मेटाफेज क्रोमोसोम होगा वो सबसे लास्ट में अरेंज होगा। जब हमने सारे मेटाफेज क्रोमोसोम्स को शेप साइज के हिसाब से अरेंज कर दिया फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, देन वी विल अरेंज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में भी हम यही करेंगे, वी विल अरेंज इट फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ओके, देन फिर हम आपका सब टेलोसेंट्रिक अरेंज करेंगे, उसमें भी largest to the smallest, then we will arrange the telocentric, that is also from largest to the smallest in size. And if the sex chromosome is present in an individual, then it will be placed last. फिर उसका size या morphology क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेटासेंट्रिक है कि सब मेटासेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, छोटा है, बड़ा है, it hardly makes a difference. If it is a sex chromosome, it needs to be placed last in the karyotype. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So now, how to prepare a karyotype? Whenever you are preparing a karyotype from any individual, what you need a population of the dividing cell. Means आपको karyotype में मैंने पहले ही बताया कि आपको सबसे distinct shape chromosomes की कब दिखती है? During the metaphase. एंड मेटाफेज आप किस में देखेंगे? जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रही हैं। सो व्हेनेवर यू प्रिपेयर अ कैरियोटाइप फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, you need the population of the dividing cells. Okay, so when we talk about the fish, we can take the blood cell as well as the anterior kidney cell. Okay, these are the cells which have the population of the dividing cells. These okay, so how to prepare the metaphase spread? A very quick देखेंगे हम। सबसे पहले मैं क्या कह रही हूँ कि हमको चाहिए मेटाफेज में क्रोमोसोम्स चाहिए, लेकिन अगर हम डिवाइडिंग सेल्स जो हैं उनसे बना रहे हैं तो होता क्या है कि अगर डिवीजन लगातार चल रहा है तो वो बहुत तेजी से मेटाफेज से एनाफेज में, एना से टेलोफेज में चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मेटाफेज। देन व्हाट वी यूज टू डू, we use the mitotic inhibitor. Mitotic inhibitor क्या है? ये एक कोई भी केमिकल जो सेल डिवीजन को मेटाफेज में अरेस्ट कर दे। मेटाफेज में अरेस्ट कर दे मतलब सेल डिवीजन मेटाफेज में आके स्टॉप हो जाए, आगे ना बढ़े, कुछ टाइम के लिए रुक जाए, वहीं पर इनहिबिट हो जाए, दैट इज नोन एज अ mitotic inhibitor. So there is a one chemical which is known as colchicine. जो colchicine होता है ये आपका mitotic inhibitor है। कैसे ये काम करता है? ये आपके स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, इसकी वजह से आपकी जो सेल हैं वो मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती हैं। जो सेल डिवीजन है वो मेटाफेज पे आके इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके डिवाइडिंग सेल्स की पॉपुलेशन है उसमें आप कॉल्चिसिन ऐड करेंगे। आपने जैसे ही कॉल्चिसिन ऐड किया, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो उन डिवाइडिंग सेल्स में जितनी भी सेल मेटाफेज पर है वो सारी, जो मेटाफेज को क्रॉस कर चुकी हैं वो तो नहीं, लेकिन जो मेटाफेज स्टेज में है वो सारी की सारी उसी स्टेज में अरेस्ट हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। देन आपको क्या करना है, उसके बाद यू नीड टू ट्रीट द सेल विद द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स क्या होता है? कम, टोनिक concentration. So when I'm talking about the hypotonic solution, आपको एक ऐसा solution बनाना है जिसका concentration साइटोसॉल के concentration से कम हो, ठीक है? तो क्या होगा, आप जैसे कि एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन आपने बनाया 0.56% ऑफ KCl। जो 0.56% का KCl है ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के साइटोसॉल कॉन्सेंट्रेशन से या न्यूक्लियोप्लाज्म या सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसके कॉन्सेंट्रेशन से कम है। तो क्या होगा, जैसे ही आप सेल में हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालेंगे वो वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करने लगेगा। अगर आपको सिंपल डिफ्यूजन का फिनोमेना पता है तो क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द lower concentration, okay, or movement of the water from lower concentration to the higher concentration, यही होता है ना?
तो क्या होगा, जैसे ही आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन उसमें डालेंगे, सेल जो है, सेल के अंदर वाटर भरना शुरू हो जाएगा। जब वाटर भरना शुरू हो जाएगा तो सेल की स्वेलिंग होगी। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो इलास्टिक होती है, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। जैसे आप बलून में एयर फिल करते हैं तो एक सर्टेन टाइम तक आप उसमें एयर फिल करके उसका साइज बड़ा करते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूअस उसमें एयर फिल करेंगे तो बलून बस्ट कर जाता है ना। तो सेम वे आप जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इन कॉल्चिसिन में अरेस्टेड सेल्स को डालते हैं तो पहले तो वो धीरे धीरे स्वेल करती हैं, और जब उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या उसकी जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, जब उसकी कैपेसिटी के ज्यादा वाटर उसमें एंटर कर जाता है तो वो मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट हो जाती है। जैसे ही वो मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है, वो जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, मेटाफेज वाले क्रोमोसोम्स, वो सोल्यूशन में फ्री हो जाते हैं, सोल्यूशन में वो सस्पेंड हो जाते हैं। अब वहां से आप उस सोल्यूशन, अब आपको क्या करना, अब आपको क्रोमोसोम मिल गए, अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप उससे फर्दर हैंडलिंग करेंगे, उसको स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड करेंगे, फिर उसको स्टेन करेंगे, फिर देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि अब जो आपको मेटाफेज में स्प्रेड मिला है उसको आपको फिक्स कर देना है। फिक्स कर देना है किस में? उसी स्टेज में, ताकि कि उसकी शेप में कोई डिस्टॉर्शन ना हो, उसकी शेप खराब ना हो, वो टूटे ना, कि आर्म्स अलग ना हो, शेप खराब ना हो। सो अब आप क्या करेंगे, अब आपके वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के ट्रीटमेंट की वजह से सेल बर्स्ट हो गई स्वेल करके, माइटोटिक जो मेटाफेज क्रोमोसोम्स हैं वो सोल्यूशन में आ गए। अब आप उसी सोल्यूशन में फिक्सेटिव ऐड करेंगे। फिक्सेटिव क्या है? एक ऐसा केमिकल जो क्रोमोसोम्स को उसी स्टेज में फिक्स कर देगा। ठीक है, तो जब हम सेल बनाते हैं देयर इज अ वन फिक्सेटिव विच इज नोन एज कॉर्ने फिक्सेटिव। कॉर्ने फिक्सेटिव में कुछ नहीं होता है, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड होता है, दैट इज इन 3:1 रेशियो। मीन्स अगर आप 40 ml फिक्सेटिव बना रहे हैं सो उसमें 30 ml आपका मिथेनॉल होगा, 10 ml आपका एसिटिक एसिड होगा। सो अब आपने अपना क्रोमोसोम्स को कॉर्ने फिक्सेटिव डाल के फिक्स कर दिया। नाउ दैट सोल्यूशन जो है आप स्लाइड के ऊपर ड्रॉप करेंगे, ग्लास स्लाइड के ऊपर थोड़ा हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो वो जो सस्पेंशन है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स है वो आपकी स्लाइड के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड हो गया, अब आप उसको ड्राई कर दीजिए, हीट कर दीजिए, तो वो जो क्रोमोसोम्स है वो आपकी ग्लास स्लाइड पे जो है वो चिपक जाएंगे। अब वो जब उस पर चिपक गए, आपने उसको एजिंग कर दी, ड्राइंग कर दी उस स्लाइड की ना, उसको अब आप किसी भी पर्टिकुलर डाई से अगर स्टेन करेंगे सो यू विल गेट द बैंड, कलर्ड बैंड ऑफ क्रोमोसोम। सो जो आप क्रोमोसोम्स में को जो डाई करने के लिए जो डाइज यूज होती है दैट इज जिम्सा। सो अगर आप 6% ऑफ जिम्सा सोल्यूशन में द क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड। ओके, सो नाउ हाउ टू प्रिपेयर द कैरोटाइप। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके बाद और उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन यू विल अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। मॉर्फोलॉजी मतलब पहले मेटा, फिर सब मेटा, फिर सब टीलो, फिर टीलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज मीन्स पहले लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है पहचानने के लिए, देन यू कैन यूज द P-N-Q-R ratio to classify the metacentric, submetacentric and other type of chromosomes. Okay. Yes. Now the karyotype formula. Okay, there is one of the formula. जैसे कि आप अगर आपने पढ़ा होगा टेक्सोनॉमी में, you must have studied the Finn formula. पढ़ा? Finn formula पढ़ा आपने? Yes, ma'am. डेंटल फॉर्मूला का नाम सुना है? Yes, ma'am. सुना है ना, ह्यूमन में जैसे डेंटल फॉर्मूला है, Yes, ma'am. इतने इंसीजर होंगे, इतने मोलर्स 2, होंगे, 1, 2, 3. हाँ इतने कनाइंस होंगे, पढ़े ना आपने? हाँ, फिर वैसे ही आपने फिन फॉर्मूला पढ़ा। फिन फॉर्मूला में डॉर्सल फिन में इतनी हार्ड स्पाइंस होंगी, इतनी सॉफ्ट स्पाइंस होंगी, इतनी रेज होंगी, इजंट इट? हाँ, पेक्टोरसल में, पेक्टोरल में, पेल्विक में, एनल में, ये सारी चीजें आपने पढ़ी ना फिन फॉर्मूला में। द सेम वे आपका कैरोटाइप फॉर्मूला भी होता है। कैरोटाइप फॉर्मूला में क्या होता है? कैरोटाइप फॉर्मूला होता है M + SM + ST + T, मीन्स metacentric chromosome plus submetacentric chromosome plus acrocentric chromosomes plus
टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और उसके बाद एक आता है आपका फंडामेंटल आर्म नंबर। फंडामेंटल आर्म नंबर में क्या होता है कि फंडामेंटल आर्म इज इक्वल टू 2 into metacentric chromosomes plus 2 into submetacentric chromosomes plus subtelocentric chromosomes plus telocentric chromosomes। तो ये जो कैरियोटाइप फॉर्मूला से या जो हमको फंडामेंटल आर्म नंबर जो मिलता है, आपके पास कैरियोटाइप फॉर्मूला है तो आप फंडामेंटल आर्म नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो फंडामेंटल आर्म नंबर होता है ये अलग अलग स्पीसीज में स्पेसिफिक होता है। तो आप किसी भी स्पीसीज का फंडामेंटल आर्म नंबर देख के भी बता सकते हैं कि यस ये जो कैरियोटाइप फॉर्मूला है या ये जो कैरियोटाइप फॉर्मूला या फंडामेंटल आर्म नंबर आया है ये सेम स्पीसीज से आया है या अलग स्पीसीज से आया है। ओके, सो नाउ अब ये तो हमने देख लिया कि क्या होता है कैरियोटाइप, ठीक है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। नाउ वी विल सी कि कैसे कैरियोटाइपिंग से आप स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मींस नाउ वी विल सी व्हाट इज कैरियोटेक्सोनमी। कैरियोटाइपिंग हमने देख ली, अब कैरियोटाइपिंग से आप आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, एक हमने लिया है आपका स्नेक हेड्स का और दूसरा महाशेर का। ये स्नेक हेड की 3 स्पीसीज हैं, Channa punctatus, Channa marolius and Channa striatus. Okay, so Channa punctatus में जो diploid chromosome number है that is 32, Channa marolius में जो diploid chromosome number है that is 44 and Channa striatus में जो diploid chromosome number है that is 42। तो आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट देख के यानी सिर्फ कैरियोटाइप देख के आप ये बता सकते हैं कि ये जो 3 अलग अलग स्पीसीज हैं, यानी आपने देखा इसमें 32 क्रोमोसोम्स, इसमें 44, इसमें 42, तो आप क्लियरली बता दिया कि दिस स्पेसिमेन बिलोंग्स टू चन्ना punctatus, दिस स्पेसिमेन बिलोंग्स टू चन्ना marolius एंड थर्ड स्पेसिमेन बिलोंग्स टू चन्ना striatus। ठीक है, क्यों बता दिया आपने, क्यों इजी था कैरियोटाइपिंग से इसकी टेक्सोनोमी करना, क्यों, क्योंकि तीनों ही स्पीसीज में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर है डिप्लॉयड सेल में। ना एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है फिशेस में, जैसे महाशेर है, टॉर पिटिटोरा, टॉर चिलिनॉइड्स, तीनों के तीनों में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है वो 50 है, सॉरी 100 है, ठीक है, 50 पेयर्स 100 है, टॉर भी 100 है, टॉर पिटिटोरा भी 100 है, टॉर चिलिनॉइड्स भी 100 है। तो अब जब तीनों की तीनों 100 है तो आप जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 100 जो है टॉर का है, ये 100 टॉर पिटिटोरा का है, ये 100 टॉर चिलिनॉइड्स का है। एनीवन, कोई बताएगा मुझे? मैम कैरियोटेक्सोनॉमी से कर सकते हैं। क्या करेंगे? मतलब मतलब तो बताइए। यू आर नॉट ऑडिबल, आप बिल्कुल भी क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। मैम यहाँ पे क्लासिकल टैक्सोनॉमी हम यूज कर सकते हैं। क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्यों यूज कर रहे हैं जब मैं कैरियो टेक्सोनॉमी की बात कर रही हूँ? तो आपको क्लासिकल टेक्सोनॉमी कैसे यूज करेंगे? आपको तो खाली क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट या एक कैरियोटाइप का फोटो पकड़ा दिया है, उस कैरियोटाइप की पिक्चर से आप क्लासिकल टेक्सोनॉमी कैसे कीजिएगा? क्रोमोसोम का शेप यस क्रोमोसोम को शेप देख के। यस, वेरी गुड। आपने क्या किया कि अगर क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है तब तो बहुत सिंपल है कि आप डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर देख के ही बता दे रहे हैं कि अलग अलग है। लेकिन अगर सेम ही नंबर है, नंबर भले डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स का सेम हो सकता है लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सब में सेम हो, ठीक है, या नंबर ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सब में सेम हो या नंबर ऑफ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम सब में सेम हो। यानी कि अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक कैरियोटाइप में सेम भले हो, सब में 100 हो, लेकिन सब उनका कैरियोटाइप फॉर्मूला और उनका फंडामेंटल आर्म नंबर अलग अलग होगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर सेम डिप्लॉयड नंबर है तो भी आप कैरियोटेक्सोनॉमी के थ्रू स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। ये है आपका, ये एक्चुअल कैरियोटाइप है, बनाया गया है, ये टॉर का है और ये टॉर चिलिनॉइड्स का है। ये दोनों ही में जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है वो 100 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, लेकिन दोनों का कैरोटाइप फॉर्मूला अलग अलग है, दोनों का फंडामेंटल आर्म नंबर भी अलग है। इसमें 20 मेटासेंट्रिक है, इसमें 20 मेटासेंट्रिक है, इसमें 24 सब मेटासेंट्रिक है, लेकिन इसमें 30 ही है। ठीक है, इस तरह से जो है आप अलग अलग करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ना और आप कैसे कर सकते हैं टेक्सोनोमी। ये तो हो गया, आपने कैरोटाइप बनाया, आपने कैरोटाइप फॉर्मूला देखा, फंडामेंटल आर्म नंबर निकाला, एंड यू कैन आइडेंटिफाई द स्पीसीज। नाउ देयर इज सम अदर स्टेनिंग मेथड्स आल्सो, जिसके बेसिस पर आप जो है टेक्सोनोमी कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल है CME3 स्टेनिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन मींस, और अ क्रोमोमाइसिन A3 स्टेनिंग for constitutive heterochromatin, then silver staining for nucleolar organizer region, and then fluorescence in situ hybridization or nucleic acid hybridization. Okay, so we'll see कि ये जो आप यहाँ पे मैं आपको देती हूँ एक एग्जाम्पल है, ये आपका नॉर्मल कैरोटाइप है चन्ना पंक्टेटस का, 16 पेयर्स हैं, 32 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अभी अगर आपको फर्दर और क्लासिफाई करना है, ये जो ग्रीन कलर का आप ये देख रहे हैं ना, ये CMA3 स्टेनिंग है। जो क्रोमोमाइसिन A3 होता है वो क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, वो रीजन जो हमेशा हेट्रोक्रोमेटिक ही रहता है, कभी यूक्रोमेटिक में चेंज नहीं होता है, और नॉन कोडिंग रीजन है क्रोमोसोम्स का, वो रीजन है जहाँ पे वैसा DNA है जो किसी पर्टिकुलर जीन को कोड नहीं करता है। ठीक है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिक रीजन है। तो ये CMA3 क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन को ब्राइटली स्टेन करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ब्राइट कलर आया है, बैकग्राउंड में ग्रीन है, यहाँ पे बहुत ब्राइट सा ग्रीन है, दिख रहा है आपको? तो CMA3 स्टेनिंग से भी आप जो है होमोलॉगस, और क्योंकि यहाँ पे स्टेनिंग हुई है तो इसका इस फोटो में, इस कैरोटाइप, इस क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट में इसका होमोलॉगस आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक ऐसा ही सिग्नल आपको सेम दूसरे क्रोमोसोम पे मिल रहा है ना, तो यहाँ से आप होमोलॉगस भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं इजिली। सो ये एक तरीका है नेक्स्ट लेवल ऑफ कैरेक्टराइजेशन बाय क्रोमोमाइसिन A3 स्टेनिंग। फिर एक होता है सिल्वर स्टेनिंग। सिल्वर स्टेनिंग क्या करता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो ये क्या करता है, उस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन को यहाँ देखिए डार्क कलर का स्टेन कर देता है। तो आप यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम भी आइडेंटिफाई कर लिया, और आप जो है किसी किसी स्पीसीज में जो ये NOR रीजन है वो एक ही क्रोमोसोम पर है, किसी स्पीसीज में NOR 2 क्रोमोसोम्स पर है, किसी स्पीसीज में 4 क्रोमोसोम्स पर है। ऐसे CMA3 किसी स्पीसीज में 1 पेयर क्रोमोसोम्स पे मिलता है, किसी में 10 पेयर पे मिलता है, किसी में 6 पेयर पे मिलता है। तो क्योंकि अलग अलग स्पीसीज में ये स्टेन स्पेसिफिक है, स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न देता है, तो आप इस तरह से जो है CMA3 स्टेनिंग अगर आपको कैरियोटाइप से नहीं भी मिल रहा है, अगर आपको कैरियोटाइप से आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा है, सपोज 2 स्पीसीज हैं, दोनों का क्रोमोसोम नंबर 1 है, दोनों में सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब टिलोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक, सारे क्रोमोसोम्स भी एक ही नंबर के हैं, फिर भी आप उसको कैरियोटेक्सोनमी के थ्रू या के थ्रू डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? तब आप दूसरे टाइप की स्टेनिंग करेंगे, सब कुछ सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, कैरोटाइप फॉर्मूला सेम है, फंडामेंटल आर्म नंबर सेम है, लेकिन अगर आप उसको CMA3 स्टेनिंग करेंगी और वो अगर 2 अलग अलग स्पीसीज हैं तो CMA3 का आपको अलग अलग पैटर्न मिलेगा। NOR स्टेनिंग अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर मिलेगी, या फिर फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जहां पर आप किसी पर्टिकुलर DNA को किसी फ्लोरेसेंट डाई से टैग कर देंगे और उसको जा करके क्रोमोसोम्स के साथ हाइब्रिडाइज करा देंगे, तो वो किसी स्पीसीज में 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे हाइब्रिडाइज करेगा, किसी में 3 पेयर पे करेगा, किसी में 6 पेयर पे करेगा। तो यानी कि अगर आप हर लेवल पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले आप सिर्फ डिप्लॉयड नंबर देख के स्पीसीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मान लीजिए कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ी तो फिर आपने कैरोटाइप फॉर्मूला देखा, फिर कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ी, आप आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा, यू कैन गो फॉर द CMA3 स्टेनिंग, फिर भी नहीं हो रहा है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द NOR स्टेनिंग, NOR स्टेनिंग से भी नहीं हो रहा है देन यू कैन गो फॉर द फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर आप DNA प्रोब यूज करें, और DNA से DNA का हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप नेक्स्ट लेवल पे जा जाके जैसे जैसे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ रही है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वैसे वैसे आप फर्दर नई टेक्निक्स यूज करके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
अब देखिए, अब ये तो हो गया कि कैरियोटेक्सोनमी आपने यूज की स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब आप कैरियोटेक्सोनमी जो है आप स्टॉक या पॉपुलेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये एक स्टडी है, टॉरपिटिटोरा करके एक फिश है, गोल्डन महाशीर भी कहते हैं जिसको। ये आपके बहुत सारे जो आपके हिल स्ट्रीम रिवर्स हैं उसमें मिलता है। तो बेसिकली 4 जो पॉपुलेशन है, 4 अलग अलग रिवर से इस फिश को कलेक्ट किया। सतलज से कलेक्ट किया, कोसी रिवर से कलेक्ट किया, अलकनंदा रिवर से कलेक्ट किया, और एक लोनावला रिजर्वायर है आपका महाराष्ट्र में, वहां से कलेक्ट किया। चारों जगह से हमने क्या कलेक्ट किया? टॉरपिटिटोरा ही कलेक्ट की। टॉरपिटिटोरा कलेक्ट की यानी चारों एक स्पीसीज हैं, तो चारों में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, चारों का कैरियोटाइपिक फॉर्मूला सेम होगा, चारों का फंडामेंटल आर्म नंबर सेम होगा। लेकिन अगर अलग अलग पॉपुलेशन है, और इस पर इन्होंने जिन्होंने भी काम किया, ये बेसिकली मेरा अपना ही पेपर है, तो इस पे जो है हमने क्या किया कि आपका राइबोसोम डीएनए है, आपका राइबोसोमल जो डीएनए होता है, ठीक है, राइबोसोमल डीएनए 18S राइबोसोमल डीएनए को हमने लाल कलर से टैग कर दिया, और जो 5S राइबोसोमल डीएनए उसको ग्रीन कलर से टैग कर दिया। ठीक है, दोनों 2 टाइप के राइबोसोमल डीएनए को हमने 2 अलग अलग कलर से टैग कर दिया, यानी कि हमने इसी का डीएनए निकाला, उसके डीएनए उसके 18S राइबोसोमल डीएनए को रेड कलर के फ्लोरेसेंट डाई से टैग कर दिया, और फिर इसी का डीएनए निकाला और उसके 5S राइबोसोमल डीएनए को ग्रीन कलर की डाई से टैग कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ग्रीन कलर के डाई से टैग करके उसको डीनेचर कर दिया। कैसे? हीट करके डीनेचर किया, तो अब वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। और साथ ही साथ हमने क्या किया, स्पीसीज के क्रोमोसोम्स को भी डीनेचर कर दिया। हाई टेम्परेचर पे ग्लास स्लाइड को रखा तो वो डीनेचर हो गई, वो खुल गया उसका डीएनए। अब हमने क्या किया, क्रोमोसोम का डीएनए खुला हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, हमारा प्रोब को भी हमने हीट करके सिंगल स्ट्रैंडेड बना दिया है, और फिर हमने उस प्रोब को ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल दिया। जब हमने उसको उसके ऊपर डाल दिया तो क्या हुआ, क्योंकि जो हमारा डीएनए प्रोब जो किसी एक पर्टिकुलर डाई से टैग है, वो आपका जीनोम में जा, जीनोम के ही कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि हमने उसी स्पीसीज से निकाला है, तो वो वहां जाकर के बाइंड हो गया। जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ तो डीएनए वापस से अनील हुआ, यानी जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था वो वापस अनील होकर डबल स्टैंडर्ड हुआ। और जहां जहां पर हमारा प्रोब जो है बाइंड हुआ, जब हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देख रहे हैं तो वो फ्लोरेसेंट कलर दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है। तो आप देखिए, अलग जैसे ये पॉपुलेशन है, सतलज की पॉपुलेशन में 2 ग्रीन सिग्नल है, 4 रेड सिग्नल है। लोनावला की पॉपुलेशन में 2 ग्रीन सिग्नल है और 6 रेड सिग्नल है। फिर अलकनंदा में भी 2 ग्रीन सिग्नल है, 1 2 3 6 रेड सिग्नल है। ठीक है, फिर कोसी में भी बहुत सारे रेड सिग्नल हैं और 4 ग्रीन सिग्नल है। तो यानी कि हर पॉपुलेशन में आपको अलग अलग पैटर्न दिए, अलग अलग लोकेशन मिला है आपको आपके प्रोब का। तो यानी कि आप कैरियोटैक्सोनमी से सिर्फ स्पीसीज ही नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, आप पॉपुलेशन और स्टॉक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, आप जितना ज़्यादा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को देखना चाहेंगे, आपको उतनी ज़्यादा एडवांस कैरियोटैक्सोनोमिक टेक्निक्स को यूज करना होगा। ओके, so this is about the karyotaxonomy, what is karyotyping, how karyotyping can be used for the identification of species or the identification of stock or population. Okay, so this is about